Hello students and welcome to Vidya Mandir classes. I'm Sanjana Jain, your botany faculty. So in the last class we completed with the chapter Respiration in Plants. Today we are going to start with its tutorial. So let's see कि किस तरह के questions इसके tutorial में किस तरह के questions पूछे जा सकते हैं इस chapter से, that is respiration in plants. So this is the tutorial on the chapter respiration in plants. Beginning with the first question, the question states that which of these statements is incorrect? So इनमें से कौन सी statement incorrect है? You have to identify that. Enzymes of TCA cycle are present in mitochondrial matrix. बिल्कुल ठीक बात है. TCA cycle कौन सी होती है? Tricarboxylic acid cycle, जिसको हम Krebs cycle भी बोलते हैं. उसके enzymes mitochondrial matrix में होते हैं, except succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase एक only enzyme है जो inner mitochondrial membrane में है. ठीक है, बाकी सारे enzymes mitochondrial matrix में होते हैं. Glycolysis occur in cytosol. तो cytoplasm में glycolysis occur होती है, बिल्कुल ठीक बात है. Oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane. Oxidative phosphorylation का मतलब है ETS, Electron Transport Chain. ETC, Electron Transport Chain. It occurs in inner mitochondrial membrane. Outer में नहीं होती, inner में होती है. तो ये statement गलत हो गई. Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atoms. तो glycolysis तब तक होती रहेगी जब तक उसके पास NAD है. NAD को यूज करके NADH का सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस. तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई थर्ड. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. Moving on to the next question, that is question number 2. What is the role of NAD plus in the cellular respiration? It functions as an enzyme. It functions as an electron carrier. It is the final electron acceptor for it functions as an enzyme. It functions as an electron carrier. It is the final electron acceptor for anaerobic respiration. Yeah, it is a nucleotide source for ATP synthesis. So ATP is adenosine triphosphate. उसमें NAD plus nucleotide source नहीं हो सकता. It is the final electron acceptor for anaerobic respiration. ये भी गलत है. NAD plus aerobic respiration में इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, बिल्कुल ठीक बात है. It is functions as an enzyme, ये गलत है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स दैट व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर Krebs cycle. Krebs cycle होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. साइट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. There are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus. बिल्कुल ठीक बात है. एक Krebs cycle में 3 जगह 3 बार NADH synthesize होता है, ठीक है. There is 1 point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2. बिल्कुल ठीक बात है. FADH2 एक बार बनता है Krebs cycle के अंदर. During conversion of succinyl-CoA to succinic acid, a molecule of GDP is synthesized. ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब succinyl-CoA से succinic acid synthesize हो रहा होता है तब GDP में convert होता है और GDP की synthesis होती है. The cycle starts with the condensation of acetyl-CoA with pyruvic acid to yield citric acid. Acetyl-CoA 2 कार्बन का कंपाउंड है, pyruvic acid 3 कार्बन का कंपाउंड है, citric acid 6 कार्बन का कंपाउंड है. 6 कार्बन के कंपाउंड को बनाने के लिए 2 कार्बन का कंपाउंड
4 कार्बन के कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करता है, तब जाके एक 6 कार्बन का कंपाउंड सिट्रिक एसिड बनता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर हो गया। यू हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins? So answer to this question is acetyl-CoA. Glucose 6-phosphate, fructose 1,6-phosphate, pyruvic acid नहीं होता है। So I'll just show you this with a diagram. यहाँ पे diagram है, ये देखो। इस diagram में you can just see here acetyl-CoA कॉमन पाथवे है प्रोटीन्स के लिए भी, यहाँ से प्रोटीन्स के लिए भी, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी और फैट्स के लिए भी। एसिटाइल-CoA इज कॉमन। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की अगर आप बात करो तो वो खाली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट भी कार्बोहाइड्रेट के लिए आ गया। पायरुविक एसिड की अगर आप बात करो तो वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के लिए आएगा, बट फैट्स के लिए नहीं आएगा। फैट्स का स्टार्ट होता है एसिटाइल-CoA के बाद, तो ठीक है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब हमारा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें there is formation of ATP by transfer of phosphate group from substrate to ADP। नहीं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हाइड्रोजन आयंस के मूवमेंट की वजह से फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी नहीं। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी, एटीपी में फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं होता, एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। तो सबस्ट्रेट जैसे कि NADH और FADH का ऑक्सीडेशन होता है, उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स उसे एक्सेप्ट करते हैं, उस टाइम में हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं, उन्हीं हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट की वजह से फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट्स दैट साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन। तो साइटोक्रोम्स कहाँ मिलते हैं? साइटोक्रोम्स आर बेसिकली found in complex 4 and they are also found, cytochrome C is a mobile carrier, so they are not found in lysosomes, matrix of mitochondria में भी नहीं मिलते हैं, वो outer wall of mitochondria में नहीं मिलते हैं, cristae is the inner wall of mitochondria, तो इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो जो कॉम्प्लेक्सेस है आपके वो भी इनर वॉल में है और जो मोबाइल कैरियर है वो भी इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज। तो इनमें से कौन से प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी इथेनॉल पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है तो इट फॉर्म्स इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। लैक्टेट फर्मेंटेशन में क्या होता है? पायरुवेट which is a 3 carbon compound forms lactic acid, तो इस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, तो आंसर वुड बी लैक्टेट फर्मेंटेशन। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 states that which of the metabolites
is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins? तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था. फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट नहीं होगा क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट is common only in this carbohydrates. Pyruvic acid is common to carbohydrates and proteins breakdown. Glucose 6 phosphate common to carbohydrate breakdown. कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन. और अगर मैं बात कर रही हूँ एसिटाइल कोए, इट इज कॉमन टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स और फैटी एसिड्स. ठीक है, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. The energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है और सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई एक्सटर्नल एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं चाहिए. तो ऐसा कौन सा है? फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस नहीं है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन कोई सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होता है पर विदाउट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये बिल्कुल ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 states that aerobic respiratory pathway is appropriately termed parabolic, amphibolic, anabolic या catabolic. तो parabolic नहीं होता. Anabolic का मतलब है breakdown और synthesis of complex compound from simple compounds. Catabolic का मतलब है breakdown of complex compound to simpler compounds. ये प्रोसेस है एम्फीबॉलिक. क्यों? क्योंकि एम्फीबॉलिक प्रोसेस में बेसिकली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और जो बीच बीच में सबस्ट्रेट्स बन रहे हैं वो सबस्ट्रेट किसी और मॉलिक्यूल को बनाने के काम आ रहे हैं, इसलिए ये प्रोसेस होगा एम्फीबॉलिक. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11. The overall goal of glycolysis, Krebs cycle and the electron transport system is the formation of न्यूक्लिक एसिड बनाना इसका काम है? नहीं. ATP in small stepwise units में बनाना बिल्कुल ठीक है. ATP in one large oxidation reaction और शुगर्स बनाना नहीं. इस सारे प्रोसेस के अंदर बेसिकली शुगर का ब्रेकडाउन हो रहा है. इस प्रोसेस ये स्टेपवाइज मैनर में इसलिए हो रहा है जिससे कि ग्लूकोज के अंदर जो भी एनर्जी ट्रैप्ड है उस एनर्जी को हम स्टेपवाइज मैनर में निकाल सके जिससे कि मैक्सिमम एटीपी का सिंथेसिस हो सके. अगर ये ग्लूकोज एक बारी में सारी एनर्जी ब्रेक डाउन कर देगा तो मैक्सिमम एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी. सो हमारा इन तीनों प्रोसेस का पर्पस क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन स्मॉल स्टेपवाइज यूनिट्स. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 states that all enzymes of TCA cycle is tricarboxylic acid cycle. इसको हम Krebs cycle भी बोलते हैं. Are located in the mitochondrial matrix except one which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol in prokaryotes. तो मैंने अभी आपको बताया था कि सारे के सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर और
खाली एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ऐसा एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है इन यूकेरियोट्स और वो साइटोसोल में होता है इन प्रोकैरियोट्स. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. क्रेब्स साइकिल के सारे ही एंजाइम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होते हैं बिकॉज प्रोकैरियोट्स के अंदर mitochondria is absent. Any membrane bound organelle is absent in the prokaryotes. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. During which stage in the complete oxidation During which stage in complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ADP? So कौन से इनमें से स्टेप्स के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ATP molecules फॉर्म होते हैं from ADP? तो यहाँ देखो, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोए. इस टाइम पे क्या होता है? NADH बनता है. NADH बनता है. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी 2 होते हैं. क्रेब्स साइकिल में 1 GTP बनता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH, जितने भी NADH क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस में बने हैं, लिंक रिएक्शन में बने हैं, NADH और FADH2, वो सारे के सारे ATP में कन्वर्ट होते हैं. तो मैक्सिमम ATP का सिंथेसिस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं. प्रोड्यूसेस नो ATP? नहीं. 2 ATP बनाते हैं. इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. has no connection with electron transport chain? नहीं. जो NADH बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ही ATP में कन्वर्ट होते हैं. तो इसका कनेक्शन है. reduces 2 molecules of NAD plus for every glucose molecule process. तो एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस होते हैं, 2 ATP यूज होते हैं और 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. The first phase in the breakdown of glucose in animal cell is. तो एनिमल सेल के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का पहला स्टेप क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस. फिर होगा लिंक रिएक्शन, फिर होगा क्रेब्स साइकिल और फिर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ETS भी बोलते हैं. सो आंसर हो गया ग्लाइकोलिसिस. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 states that at the end of glycolysis, 6 carbon compound ultimately changes into. तो glycolysis के end पर 6 carbon compound glucose होता है. It forms 3 carbon compound pyruvate या pyruvic acid और उसके बनाता है 2 molecules. सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन का है, एसिटाइल कोए 2 कार्बन का है और ATP में कार्बन वाला बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय. तो इलेक्ट्रॉन्स कौन रिमूव करता है ग्लाइकोलिसिस में ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन? ATP रिमूव नहीं करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं करता है. NAD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस विल फॉर्म NAD H प्लस H प्लस. सो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है NAD प्लस. ठीक है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. Question number 18 states that the organism used for alcohol fermentation is Aspergillus
Saccharomyces, Pseudomonas and Penicillium. तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है yeast के अंदर. Scientific name of yeast is Saccharomyces. So answer to this question is option number 2. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. Question number 19 states that which of the following products are obtained by anaerobic respiration from yeast. तो अभी हमने देखा yeast जिसका साइंटिफिक नेम है Saccharomyces, वो बनाता है अल्कोहल. ठीक है. बियर और वाइन डायरेक्टली यीस्ट से नहीं बनती है, वो फर्मेंटेशन के बाद बनती है, तो सीधा यीस्ट से ऑब्टेन नहीं होती. अल्कोहल, इथेनॉल ऑब्टेन होती है फ्रॉम दी यीस्ट. एक मिनट, लेट मी ड्रॉ राइट डाउन दिस रिएक्शन. पायरुवेट बनता है इथेनॉल एंड CO2 में. तो बियर एंड वाइन आर दी नॉन फर्मेंटेशन प्रोडक्ट. तो वो भी आप बोल सकते हो. फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स आर, यू कैन से विस्की, ब्रांडी, रम, जिम, वोडका, दीज आर दी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट. तो डायरेक्टली यीस्ट से ये बनता है, अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 स्टेट्स दैट द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन आर. एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन अगर वो है अल्कोहलिक, तो एंड प्रोडक्ट्स है C2H5OH, that is ethanol and CO2. अगर है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो एंड प्रोडक्ट्स इज लैक्टिक एसिड. सो क्वेश्चन नंबर 20 में कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है. तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. During the formation of bread, it becomes porous due to the release of carbon dioxide by the action of yeast. So answer to this question is option number 1. तो fermentation होती है yeast के अंदर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पफिनेस और ब्रेड के अंदर रिस्पॉन्सिबल है. बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ नहीं होता है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. In Krebs cycle, the FAD participates as electron acceptor during the conversion of. तो Krebs cycle के अंदर FAD convert होता है FADH2 during the conversion of succinic acid into fumaric acid in the presence of enzyme fumarase. So answer हो गया ऑप्शन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is the key intermediate product linking glycolysis to the Krebs cycle? देखो, glycolysis में क्या होता है? Glucose gets converted into pyruvate. Glucose is a 6 carbon compound, pyruvate is a 3 carbon compound. ये दो molecules बनते हैं, ठीक है? Pyruvate then enters the link reaction. During link reaction, there is decarboxylation occurs और carbon dioxide release होती है, और बनता है एक 2 carbon का compound, that is acetyl CoA. This acetyl CoA enters Krebs cycle. So, अगर हम बात करें कि glycolysis और Krebs cycle, glycolysis और Krebs cycle को लिंक कौन सा मॉलिक्यूल कर रहा है, तो that is acetyl CoA. So answer to this question is option number 2. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, that is question number 24. In which one of the following do the two names refer to one and the same thing? Krebs cycle को हम क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं.
सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं। कैल्विन साइकिल C3 पाथ में होता है, वो फोटोसिंथेसिस में होता है। क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड साइकिल हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल को, ये ठीक है बात। सिट्रिक एसिड साइकिल और कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस में है और सिट्रिक एसिड रेस्पिरेशन में, तो ये अलग अलग चीजें हो गई। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल occurs in respiration, which is the other name of Krebs cycle, और यूरिया साइकिल अलग ही होगी। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन दी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटॉन्स कहां पर एक्यूमुलेट होते हैं? So this is cristae or inner mitochondrial membrane. ठीक है, this is the outer mitochondrial membrane. आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। एंड ये क्या है आपका? ये है मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, सो जो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं वो यहाँ पर होते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनल स्पेस में। जो मेम्ब्रेनल स्पेस है ना, यहाँ पर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं। So answer would be first, matrix, outer membrane और inner membrane नहीं होगा। Answer to this question is option number 1. आगे बढ़ते हैं question number 26 की तरफ। Question number 26 states that ultimately respiratory source yielding maximum number of ATP molecules is, the maximum number of ATP molecules glycogen, amino acid, amylose से नहीं बनता, ग्लूकोज से बनता है। ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन से हमें 36 to 38 ATPs बनते हैं। So answer is option number 3. Next question is question number 27. Question number 27 states that the correct sequence of electron acceptor in ATP synthesis is, तो देखो complex 1 NADH dehydrogenase, के बाद आया सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फिर आया आपका साइटोक्रोम, BC1 ऑक्सीडोरिडक्टेज, देन साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, and then ATP synthetase. तो यहां पर होता है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, या यू कैन सी साइटोक्रोम C1 होता है यहाँ पे। यहां से फिर इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम C मोबाइल कैरियर, यहां पर होता है साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं, पहले B से C1, C1 से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर फाइनली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। Which of these has RQ more than 1? फैट का RQ होता है 0.7 ट्राइपाल्मिटिन। RQ is actually the ratio of amount of CO2 evolved upon amount या volume of oxygen consumed. ठीक है,
तो फैट 0.7, प्रोटीन का होता है 0.9, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स का मोर देन 1 होता है। मैलिक एसिड जैसे कि एग्जांपल्स, मैलिक एसिड का इट इज 1.33, ऑक्सैलिक एसिड का इट इज 4, RQ is 4. So organic acids का more than 1 होता है, more than unity होता है, so answer would be option number 4. Moving on to the next question, that is question number 29. How many ATP molecules are formed by oxidative phosphorylation from NADH produced during single Krebs cycle? During single Krebs cycle, 3 NADH, 1 FADH, 2 and 1 GTP are produced. One NADH2 या 1 NADH plus H plus is equivalent to 3 ATPs. वो 3 ATPs बनाने के काम आता है. 1 FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATPs बनते हैं. तो 3 NADH के ऑक्सीडेशन से 3 ATP मल्टीप्लाई कर दो, 9 ATPs, 3 3s 9 ATPs बनेंगे. 1 FADH2 से 2 ATPs बनेंगे और 1 GTP is equivalent to 1 ATP. तो अगर आपसे पूछा भाई कि एक Krebs साइकिल में NADH से कितने ATPs बनेंगे, सो आंसर वुड बी 9. ठीक है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4. Moving on to the last question of the day, that is question number 30. Mobile electron carrier in ETS in mitochondrial membrane is. तो ETS के अंदर we have 2 mobile electron carriers. One is ubiquinone and other is cytochrome C. So among these complex 1, NADH dehydrogenase complex है, वो mobile carrier नहीं है. साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम A और A3 कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के अंदर होता है, वो मोबाइल कैरियर नहीं है. साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम BC ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर होते हैं, वो भी मोबाइल कैरियर्स नहीं है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. So with this, we have dealt with our today's tutorial. We'll see you soon. Bye-bye. Take care. And in the next class, we are going to start with the next chapter, that is plant growth and development. Bye-bye.